Good afternoon, everyone. Good afternoon, ma'am. On behalf of all staff members and students, I welcome Madam Anita Kungar in this campus. मुझे मैडम का इंट्रोडक्शन देने का जिम्मा सौंपा गया है, तो मैडम का इंट्रोडक्शन अगर मैं बहुत छोटे शब्दों में, बहुत एक लाइन में अगर बताना चाहूँ, तो गागर में सागर हो सकता है। मैडम को इतनी नॉलेज है, मैडम ने इतने पेपर्स किए हैं, इतनी जगह मैडम ने काउंसलिंग करी है, तो नॉलेज का तो भंडार है, आप इसका फायदा उठा सकते हो आज। और मैडम के बारे में फॉर्मली अगर मैं कहना चाहूँ तो मैडम अनीता हैज मोर देन 36 years of teaching and counseling experience. She has worked in various colleges of Haryana like Government College Karnal, Faridabad, Panchkula as lecturer and associate professor. Then she retired from Government College Macholi as principal. After retirement, हम ये सोचते हैं कि लाइफ रिटायरमेंट के बाद रुक जाती है, बट मैडम की लाइफ रुकी नहीं। After retirement, she is living active life and helping society in various ways. She is working as a counselor at various platforms at national and international level, both online and offline mode. She is very pleasant, positive, and hardworking personality, and trying her best to spread awareness about mental health issues and their remedies. Madam is working with many NGOs and guiding students so that better counselors can be available for help. It is hard fact, especially in Indian society, that we keep on ignoring mental health till situation gets worse. We don't understand that both physical and mental health are important to lead happy life. Madam is trying hard in spreading this awareness among society. This is indeed a true social work. As mental health is very challenging issue in this fast and competitive world, especially after COVID-19. So, I am thankful to Madam for giving us the opportunity to listen her words, and I hope we all will be benefited from this. मैम का फॉर्मल वेलकम करने के लिए मैं मैडम नीलम देगा से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो मैम प्लीज नीलम देगा मैम, मीनू मैम, I am always like this कि 58 नहीं 55 पे रिटायरमेंट हो जाए so that our children gets young generation को मौका मिले। Now I would like to invite Ma'am Anita Kungar, Ma'am please हमारे बच्चों को थोड़ा सा गाइड करें। यही देखो आपको माइक। Good morning, my friends. Good afternoon, ma'am. Sorry. Good afternoon, my dear friends and young children to whom I love the most. मुझे लगता है जब हम इन यंग बच्चों के बीच में बैठते हैं तो हम खुद भी यंग हो जाते हैं। We then remember our college days, that how the time has passed beautifully. So I again welcome my friends as well as children today. Now just give me, I am not here to give you any lecture. I have come as to guide you, to learn something so that you can brighten your days which are waiting for everyone.
First of all, I would like to know whether you will like to have Hindi medium, English medium, or both. I do not want to make it sounding it a very intelligent, interactive session. What I want the children, so that they should understand कि mental health क्या है. Everyone has heard about physical health. Right? You want to be in the best of your physical health, right? I will have an interactive session. I will not lecture today. Children will also participate in this. What are the different ways so that you can have optimum of your physical health? कैसे आप अपनी physical health को improve कर सकते हो? Come on, who will tell? कौन सा बच्चा बताएगा physical health को किस तरह से ठीक कर सकते हैं? Physical health बच्चों, शारीरिक जिसको आप, हाँ जी, योगा मेडिटेशन जिम करकर. very good. Okay. Then first point is exercise, right? You have told me the different ways of maintaining physical health in doing exercise for various like yoga, swimming, exercises, running, walking, jogging, weightlifting, so many there are. This is only one factor. The next factor, who will tell? हेल्दी फूड खाकर. Very good, very good. One of the very good answer is, the first one is healthy food. Healthy food में आप proportion लेते हो FFP. Do anyone knows about the what is FFP? Fiber, fruits, peas for protein. तीन आपको बहुत ही essential component चाहिए, right? इसी के साथ अगर physical health आपके लिए जरूरी है, so then what is mental health? Physical health के बारे में अगर मैं किसी को भी खड़ा करती हूँ जहां पर everyone will be able to tell that this is physical health, हम इसको इस तरह से improve कर सकते हैं, right? Mental health क्या है? मैं बच्चों से पूछना चाहूंगी कि mental health क्या है? मानसिक स्वास्थ्य हिंदी में जिसको हम कहते हैं मानसिक स्वास्थ्य क्या है? बताएगा कोई? Anyone, anything you know about mental health? Okay. So it is well proven. हम इंडियंस, हम भारतीय लोगों को शारीरिक स्वास्थ्य के बारे में, फिजिकल हेल्थ के बारे में फिर भी कुछ पता है. मेंटल हेल्थ के बारे में we do not know anything which is equally important like physical health. जितनी आपकी फिजिकल हेल्थ जरूरी है उतना ही आपका मानसिक हेल्थ. नाउ आई विल कम टू द पॉइंट दैट व्हाट इज मेंटल हेल्थ. Mental health involves our emotional, psychological and social well-being. Emotional means हमारा संवेदिक, हम किस तरह से हमारे इमोशंस हम अपने प्रकट करते हैं, हम क्या सोचते हैं, क्या फील करते हैं, हमारा समाज के साथ किस तरह का इंटरेक्शन है, whether you have a friendly circle, are you aggressive,
What kind of a personality do you exhibit? आप किस तरह का व्यक्तित्व दिखाते हैं? Psychologically, whether do you value yourself? Do you realize that what you are? Does your conscience speak when you do wrong? क्या आपकी कॉन्शियस बोलती है जब आप गलत करते हैं? और थर्ड वेलबींग है सोशल वेलबींग. Like what kind of interpersonal relation do you have with your family, with your friends, and in the society? What kind of an aura you have? Do you understand what is mental health, my बच्चों? समझ आई है अब आपको? आपकी जितना शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं, उसका तब तक महत्व नहीं है जब तक कि आपका मेंटल हेल्थ या मानसिक रूप से आप स्ट्रॉन्ग स्वस्थ नहीं है. लाइफ है, लाइफ इज ए चैलेंज. इट्स नॉट very simple. Everyone is sitting here. You have continuous ups and downs in life, isn't it? We have a anxiety, we have fears. The more you have, the more fears you have. Do you know that? ज्यादा अमीरी, ज्यादा खोने का डर. ज्यादा अच्छी फैमिली, ज्यादा खोने का डर. अच्छी हेल्थ, खोने का डर. So at every point of life we have fears, we have insecurities, we have anxieties. So how to deal with it? Till you are mentally strong person, जब तक आप मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं हो, तब तक आप इन चीजों को, एंजाइटी को, अपने सॉरोस को आप जीत नहीं सकते हो. एंड आई अगेन से दैट एज इज नो bar. 93 years old physics teacher in a village teaching physics to competitive classes give you motivation that we are not doing anything. हम तो कुछ भी नहीं कर रहे हैं. What you want to do with your life? आप अपनी लाइफ के साथ क्या करना चाहते हैं? So, कोरोना में मेंटल हेल्थ की वैल्यू 30% ज्यादा वैल्यूएबल कर दी है. Why? Because people dealt with family loss, sometime job loss, sometime the environment was very negative. अभी आपने पीछे गुड़गांव में एक केस देखा था जहां पर कि शायद एक मदर ने अपने बच्चे को 3 साल तक अंदर होल्ड करके in a hoarding, like she didn't throw even प्लास्टिक जो गार्बेज बैग्स आते थे उनके घर, वो कुछ भी उसने नहीं फेंका. She was living in a cluster of heat. You know why she was doing it like that? Why? Because she was not mentally strong. She had a mental illness that was mild schizophrenia. And neither his family members, neither his parents, neither her husband knew that she is suffering from a disease which needs to be in a specific level treated by psychiatrist, counselor and psychologist. Irony is this, that we are developing nations. हम डेवलप कर रहे हैं. हमारे पास खाने को, हमारी
आधी पॉपुलेशन के पास खाने को भोजन नहीं है। हम मेंटल इलनेस की तब बात करते हैं जब मैस्लो, एक साइकोलॉजिस्ट का नाम है, कि मैस्लो नीड ऑफ हायरार्की, सबसे पहले हम अपनी फिजिकल नीड्स को पूरा करते हैं, खाना पीना घर। मेंटल लेवल तो तभी आता है जब ये बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ पूरी हो जाती हैं। जिनके पास बेसिक नेसेसिटीज नहीं है वो मेंटल लेवल की बात बेचारे क्या करेंगे? दे डोंट नो दैट व्हाट इज मेंटल लेवल। मेंटल इलनेसेस जो हैं वो धीरे धीरे इंडिया में भी एक बहुत ही विग्रस रूप ले रही हैं। कोरोना के बाद स्पेसिफिकली द केसेस मेंटल इलनेस में, पहले मैं आपको बताती हूँ, मेंटल इलनेस मीन्स ए पर्सन हु इज नॉट मेंटली बैलेंस्ड। कोई भी सिचुएशन आई, उस सिचुएशन में घबरा जाना, एक एप्रोप्रिएट रूप से, एक ऑर्गेनाइज्ड रूप से, संगठित रूप से अपना बेस्ट ना करना। एक टेम्परेरी फेस जरूर आता है हर एक की लाइफ में कि हम इन मेंटल इलनेस को या इन मेंटल चैलेंजेस को ठीक तरह से हम नहीं पकड़ सकते, लेकिन आफ्टर सम टाइम a normal human being will be able to solve these problems in an analytic way. And if these problems continue for many days and for whole of your life, then it is a problem for your family as well as for your society, for your professional this thing. आपने कभी ये देखा है कि लोगों को बहुत गुस्सा आता है? किसको आता है? कौन बताएगा? किसी बच्चे को आता है बहुत गुस्सा? खड़े हो जाओ। बोलने को तो मैं रात तक बिठा लोगे, मैं बोलती जाऊंगी। मेन तो है कि you should understand that what are mental। क्यों आता है बेटे आपको गुस्सा? क्यों आता है? नहीं, आपने जब आपको गुस्सा आता है तो हैव यू एवर सैट अलोन, कभी अकेले कमरे में बैठ के अपनी सेल्फ एनालिसिस किया है, इंट्रोस्पेक्ट किया है कि भाई मुझे गुस्सा क्यों आता है, मैं इसको कैसे ओवरकम कर सकती हूँ? क्या क्या कैसे? मैं सोच रही हूँ उस टाइम मैं एडजस्ट कर सकती थी सिचुएशन को, कुछ ना बोल के सुन सकती थी, मतलब नहीं हो पाता, बट करना चाहिए। मैं इतना डिटेल में नहीं जाऊंगी कि व्हाट आर लाइक दैट इज ए केस ऑफ इंडिविजुअल काउंसलिंग। लेकिन अगर आपको गुस्सा आता है तो आपको उस गुस्से को किस तरह से ऑर्गेनाइज्ड, बैलेंस्ड, सिस्टमैटिक रूप से उस प्रोसेस से निकलना है सो दैट इट डजंट हार्म यू। आप किसी को हार्म करते हो उससे पहले आपके अंदर आपका हार्म होता है। सारी चीजें पता होती हैं, हाँ, कैसे करें वो हाँ, that when you start analyzing yourself, अब बैठ जाओ बेटे, जब आप एनालाइज करना शुरू करते हो, जब आपको ज्यादा गुस्सा आता है, आपको पता होता है as you grow, she is चाइल्ड ऑफ एडोलसेंट एज में है बच्ची, बट उसको पता है ना कि मैं गुस्सा करती हूँ, ठीक है? अगर इसको कोई गाइड करने वाला हो, इसको ठीक बताने वाला हो कि बेटे पहले तो उस गुस्से का कारण ढूंढो, जब वो कारण रीजन समझती है उसके बाद उसको सॉल्यूशन ले जाने तक एक इजी प्रोसेस नहीं है, लेकिन शी हैज टू हैव। आजकल तो गूगल देता है, बहुत कुछ गूगल बता देता है that what are the reasons of your anger। आप काउंसलिंग में हमारे पास ये क्या है कि हम पेरेंट्स को कहते हैं, या पेरेंट्स को अगर पता लगता भी है ना कि यहाँ कोई प्रॉब्लम है मेरे बच्चे के पास,
द मेंटल स्टिग्मा इज पेरेंट्स छुपाते हैं। दे डू नॉट वांट कि हमारा बच्चा काउंसलर के पास जाए। उनको लगता है पता नहीं मेरे बच्चे की शादी होगी कि नहीं होगी। उसको एक मेंटल इलनेस जो वर्ड है उसको उसके साथ एसोसिएट कर दिया जाएगा। एंड दिस इज ट्रूथफुल आल्सो इन इंडिया। Although people are taking counseling nowadays in a very greater extent in comparison, if I do comparison जो पहले होती थी, लेकिन आज भी मैंने देखा है when parents come specifically unmarried boys and girls, they tell me कि मैम इसकी फाइल मत बनाना। भाई फाइल बनाओगे तो कभी आप किसी को डेटा मत दिखा दो। So we have to give them assurance कि हम इसकी फाइल नहीं बनाएंगे। So मैं यहाँ पे ये नहीं कह रही कि गुस्सा आता है तो काउंसलर के पास जाओ। कितनी प्रॉब्लम्स के लिए काउंसलर के पास जाओगे? नहीं जाना तुम्हें। हमें हमारा धंधा नहीं चाहिए, हमें चाहिए you become strong so that you can deal your problems yourself. Be strong enough. Do your physical exercise daily. Maintain your physical health. इसके बाद value yourself. हम इंडियंस अपने आप को बहुत पीछे रखते हैं, सबसे पीछे, फैमिली सबसे आगे। Every individual has the right. आप फैमिली के लिए तब असेट हो जब आपके पास आपकी मेंटल हेल्थ है और फिजिकल हेल्थ है। मेंटल हेल्थ तभी होगी जब आपकी भी अनमैरिड गर्ल्स हैं, अनमैरिड बॉयज हैं। जब तक ये फिजिकली स्ट्रांग नहीं है, द नेक्स्ट जनरेशन विल नेवर बी फिजिकली स्ट्रांग। सो हमें सबसे पहले अपने आप को रखना है। That doesn't mean कि आपको फैमिली को पीछे रखना है। एक बैलेंस। If I have my job at 10 o'clock, I can make my schedule like that so that I get 1 hour in the morning for myself. That is what. And if somebody says कि हमारे पास टाइम नहीं है, वो मिथ है। वो अपने आप को आप झूठ कहते हो कि मेरे पास टाइम नहीं है। इन दिस वर्ल्ड ऐसा कोई भी नहीं है जिसके पास अपने लिए, अपनी फिजिकल एक्टिविटी के लिए टाइम नहीं है। मेंटल हेल्थ क्या है? अब उस बच्चे को गुस्सा आता है, उस टाइम अगर उसकी फिजिकल एक्सरसाइज, फिजिकल एनर्जी मॉर्निंग में अपनी जॉगिंग में, वॉकिंग में, स्विमिंग में, व्हाटएवर किचन वॉक में अगर वो निकल गई है ना, बहुत नहीं उलझेगी। बहुत सारी लेडीज यहाँ बैठी हैं जो जॉब करती हैं, दे विल अंडरस्टैंड दैट। वो कहेंगे भाई हमारे पास तो टाइम ही नहीं है लड़ने के लिए, झगड़ने के लिए, गुस्सा करने के लिए, हमारे पास वक्त नहीं। This is positive mental health when you challenge yourself not to accept any criticism or any negative feeling from anyone. Don't give yourself any strength कि कोई आपकी 10 पॉजिटिव चीजें दो तो एक नेगेटिव चीज लेना। Remember, and इस चीज को आप अपनी जितनी जल्दी अपनी पर्सनालिटी में ले आओगे उतने सुखी हो जाओगे। आपके पेरेंट्स भी हैं, आपके हस्बैंड्स भी हैं, सोसाइटी भी है। If your parents give due regard, if your husband, your mother-in-law, your father-in-law, your sister, brother, I am not making any exception for anyone, whoever it be, अगर वो आपको पॉजिटिव लेता है तो आप नेगेटिव लेना। खाली नेगेटिव लेने का आपको कोई अधिकार नहीं है, न देने का ना लेने का। मेंटल है, अब मैं यहाँ पे जो मेन आ रही हूँ कि मेंटल हेल्थ को आप कैसे इंप्रूव कर सकते हो, मैं कुछ वेज बता रही हूँ आपको। सबसे पहले मैंने कहा है कि फिजिकल हेल्थ। सेकंड है, मैंने आपको बताया है कि आपने सेल्फ वैल्यू करनी है, रिस्पेक्ट योरसेल्फ। रिस्पेक्ट में क्या आता है?
ये नहीं मतलब कि हार्ड वर्क इज द की टू सक्सेस। मैं कहती हूँ हार्ड वर्क, रिलैक्सेशन, डूइंग समथिंग फॉर यू एवरी डे इज द कीज टू द सक्सेस। I do not say only hard work, hard work, hard work. Why? Hard work without relaxation is nothing. You love gardening? Do gardening in the morning. Bring some plants to your this thing. You love swimming? Do swimming. 45 minutes तो निकालने हैं स्विमिंग के लिए, ज्यादा नहीं निकालना हमें टाइम। इसी तरह से जिसकी भी जो पसंदीदा चीज है, शेफ है किचन में डिश बना लो, थ्राइस इन अ वीक, इट्स गुड। अपनी पसंद की चीजें करना सीखो। सारा दिन 23 घंटे में कहती हूं 8 घंटे की आपको स्लीप चाहिए, राइट? 1 घंटा 2 घंटे आप अपने लिए निकालते हो तो कितना हो गया? 10 घंटे, 14 घंटे दूसरों को दे दो, उसमें आपकी मेंटल हेल्थ भी ठीक रहेगी। कैसे रहेगी? एज ए स्टूडेंट डू जस्टिस टू योरसेल्फ। अपना काम, अपनी पढ़ाई, सब कुछ मैं कहती हूँ बच्चे अगर 12वीं तक अच्छा पढ़ जाते हैं ना, टिल 12th, उनका 60% लाइफ की हैप्पीनेस तो यहीं से ही, व्हाटएवर दे वांट टू डू, if they want to do some business, they want to have a startup, they want to do the education, they want to be the musician, whatever they want to be, they should achieve। बड़ी उनके अंदर एक निष्ठा होनी चाहिए अपने कैरियर की बनाने के लिए। उसके बाद उन 11th 12th में भी मैं कभी भी नहीं बच्चों को कहती कि भाई 12 घंटे पढ़ो। रेगुलरली बचपन से जो बच्चा ठीक आवर्स पढ़ता आ रहा है, उसको 11th 12th में ज्यादा पढ़ने की जरूरत है, बट इतना नहीं कि 1 घंटा वो फिजिकल हेल्थ के लिए ना निकाल पाए। That 1 hour spending outside is much more important for the whole personality of that individual। इसी के साथ साथ नेक्स्ट आता है मेंटेनिंग रिलेशनशिप। दैट इज वन ऑफ द मेन ऑब्जेक्टिव फॉर मेंटल हेल्थ। सोशल रिलेशंस का ये मतलब नहीं है कि बाहर की सोसाइटी। द फर्स्ट रिलेशनशिप स्टार्ट्स एट योर होम। हाउ यू आर एट ईज विद योर पेरेंट्स, योर सिबलिंग्स, ब्रदर, सिस्टर, फ्रेंड्स, पियर्स, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, बाहर खेलते हैं, उनके साथ आपका रिलेशन कैसा है? मेंटेनिंग ए वेरी गुड सोशल रिलेशन इज द की सक्सेस टू गुड मेंटल हेल्थ। जितना अच्छा स्टडी, APA अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन में मेयर्स की एक स्टडी है, उसने ये प्रूव करके दिखा दिया कि भाई जो लोग लंबा जीते हैं उनका फ्रेंड सर्कल जो है सोसाइटी में, उनकी जो रेपुटेशन है, जो उनका इंटरपर्सनल बिहेवियर है, वो बहुत ही कोर्डियल होता है। These people are not झगड़ालू, वो झगड़ते नहीं हैं। उनकी हर चीज उनके बेस्ट ऑफ एफर्ट्स पे डिपेंड। हैप्पीनेस है, हैप्पीनेस ऐसे नहीं आती। आपको हैप्पीनेस के लिए बचपन से एफर्ट भी करना पड़ेगा, आपको सेल्फ वर्थ अपनी देनी पड़ेगी, आपको सेल्फ रियलाइज भी करना पड़ेगा। अब मेरे सामने मेरे बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं जो कि लेक्चरर बने हैं, आखिर उन्होंने पढ़ाई तो की होगी। अगर वो भी स्कूल में फेल होते तो वो आज इन सीट्स पे ना होते। Once you have finished your studies, you have got a job, you feel our lives are 50% तो बन गई भाई, because you are now economically independent. Mentally
आपको स्ट्रांग होने के लिए, whether it is ladies or male, female, they have to be independent financially. मैं आज भी ये कहती हूँ, अगर लेडीज कहती है ना कि हम इक्वल हैं, यहाँ बहुत सारी लड़कियां बैठी हैं, बड़ी गाना गाते हैं हम लोग, हम इक्वल हैं गाते हैं ना, तो अंदर आपने ये भी फीलिंग ले लो कि मुझे अपने हस्बैंड का, अपने फादर का पैसा बहुत ज्यादा नहीं खर्च करवाना, और हस्बैंड का तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि उस तक माँ बाप बड़े करके पढ़ा के भेज देते हैं। इट्स नॉट ए नेगेटिव एस्पेक्ट ऑफ आवर लाइफ। क्यों लेना चाहते हो? देना सीखो ना। गिविंग, व्हेन यू हैव ए नेचर ऑफ गिविंग, कि मुझे देना है, मुझे फ्रेंड्स को भी देना है, मुझे अपनी फैमिली को भी देना है, मुझे सोसाइटी को भी देना है, मुझे अपने बड़ों को भी देना है। क्रिएट मॉरल वैल्यूज फॉर योरसेल्फ। मैं कहती हूं अगर हमारे अंदर ये फीलिंग आ जाए ना, तो 70% तो हमारा क्लेश यही कर जाता है। इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट होना, उस इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट का मतलब मैं फिर कहूंगी बदतमीजी नहीं, उसका मतलब है ग्रेसफुली वॉक विद योर फैमिली, बट बी डिपेंडेंट, नॉट टू बी डिपेंडेंट ऑन अदर्स। दूसरों पे डिपेंडेंट नहीं होना कि दूसरा मुझे ले जाएगा घुमाने। अर्न योरसेल्फ फॉर दैट ना। हम इक्वल हैं तो फिर इक्वल ही रहे ना, राइट गर्ल्स? एम आई राइट? मेक योरसेल्फ सो स्ट्रॉन्ग। जब आप मॉरली स्ट्रॉन्ग हो, आप हर तरफ से ठीक हो, आपको बहुत ज्यादा, मैंने देखा है, कोई तंग नहीं कर पाता। जब आपकी आत्मा अपने अंदर से आवाज देती है ना, यू आर रॉन्ग, यू आर बीइंग मैनिपुलेटिव, आपकी मेंटल हेल्थ बिल्कुल डाउन हो जाती है। आपको पता लगता है मैं क्या सीरियल जैसा कर रही हूँ, इंडियन जो मूवीज में आता है और टीवी पे आता है ना, वो सारे सीरियल्स की तरह मैं भी व्हाट आई, एवरीबॉडी नोज व्हाट दे आर। उनकी आत्मा उनको धीरे धीरे बताती है। सो अगर मेंटली स्ट्रांग होना है तो अपने वजूद को इतना स्ट्रांग बनाओ कि कोई उसमें आपकी उंगली ना उठा पाए। मेरे पास पीछे एक केस आया फरीदाबाद में, मैं वैसे रात तक बोलती रहूंगी, जब रुकना हो तो मुझे बता देना। तो मेरे पास एक केस आया, एक लड़की और लड़का, लड़की आई कि भाई मैं 7 बजे फार्म हाउस पे मुझे इस लड़के ने बुलाया। दे वर फ्रॉम दिल्ली बेसिकली। तो यहां से आए तो मेरे को फरीदाबाद लाया गया फार्म हाउस पे, एंड आई वाज बीइंग रेप्ड। उसने मुझे, मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगी, शी वाज वन ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ दिल्ली कॉलेज। तो मैंने कहा तुम अपने माँ बाप को नहीं बता के आए थे? कहती है नहीं। मैंने कहा किसी फ्रेंड को? कहती है नहीं। भाई बहन को? नहीं। मैंने कहा क्यों नहीं बता के आए थे? कहती है पता नहीं। वो लड़की 10 मिनट मेरे पास चुप बैठ रही। मैंने कहा आंसर तो तुम ही दोगी, गई भी तो तुम ही थी ना, मैं तो नहीं गई थी ना, तो आपको जवाब खुद ही देना पड़ेगा। उसने मुझे 10 मिनट के बाद जवाब दिया कि मुझे डर लग रहा था। मैंने कहा डर नहीं लग रहा था, तुम चोरी कर रहे थे। अगर आज आपके माँ बाप को पता होता, किसी भाई बहन को पता होता, तो उस लड़के की भी हिम्मत ना होती। इफ ही वुड हैव नोन ना कि तुम्हारे घर में पता है, सारी स्टोरी तो चोरी से शुरू होती है। जिस चीज को आप अपने फैमिली को, अपने फ्रेंड्स को, अपने हस्बैंड को नहीं बता सकते हो, वो चोरी है। मेक योरसेल्फ मेंटली सो स्ट्रॉन्ग। वो करो जो आपके लिए अच्छा है, आपकी मानसिक स्थिति को ना बिगाड़ दे। मैं ये नहीं कहती कि हर लड़की डॉक्टर इंजीनियर बनती है या बहुत बड़े बड़े पदों पे जाती है। छोटे छोटे कई काम भी बड़े अच्छे हैं, स्टिचिंग है, ब्यूटी पार्लर है,
एमवी के प्रोडक्ट्स हैं, बहुत सारे हैं जिनको कंप्यूटर आता है, फ्रीलांसिंग करती हैं, बुटीक्स हैं। जरूरी नहीं है कि भाई अगर आप नहीं पढ़े तो फिर आप कुछ कर भी नहीं सकते। अपनी मेंटल हेल्थ के लिए आपको कुछ ना कुछ करते रहना बहुत जरूरी है। सेम इज विद द बॉयज। लड़कों को बहुत जल्दी राइट वे में इंडिपेंडेंट होना, हैविंग दोज sophisticated male qualities in them is much more crucial for their independent life. They should grow from their childhood, their adolescent and become a very good human being. मेंटल हेल्थ तो आपकी तभी ठीक रहेगी जब आप एक अच्छे ह्यूमन बीइंग हो। आप डेली क्या देते हो किसको, सिर्फ मान लो कि डेली आप किसको क्या देते हो। मेरे पास अभी एक न्यूयॉर्क का क्लाइंट है, वो कहता है जी मैं घर के लिए क्या कर सकता हूँ बिफोर आई गेट अप। तो मेरे तो यहाँ सब कोई किंडो चला जाता है, कोई पेट्रोल पंप चला जाता है। मैंने कहा रात को तो आते हैं, तो मॉर्निंग में उनके लिए एक दिन डिनर बना के रख देना। हिज मदर व्हेन शी केम वाज सो हैप्पी, तो उसने उसको बड़ी रीइंफोर्समेंट दी। तो अब वो पिछले 6 महीने से अपने पूरी घर का डिनर बनाता है। लड़का लड़की क्या कौन करता है, इट इज नॉट इम्पोर्टेंट, इट इज व्हाट यू आर कंट्रीब्यूटिंग टू योर सेल्फ वर्थ। आपकी सेल्फ वर्थ किस चीज से है। अगर सेल्फ वर्थ नहीं है, नहीं बना सकते हो, तो इट इज नॉट इम्पोर्टेंट। सो मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, सोशल वेलबींग, ये सब इकट्ठे ही जाएंगे। अगर आप सोचते हो मैं शारीरिक रूप से स्वस्थ हो जाऊं और मानसिक रूप से स्वस्थ ना हो, तो वो नहीं चल सकता। दे आर इंटर रिलेटेड। आप फिजिकली स्ट्रांग हो, मेंटली स्ट्रांग हो, सोशली स्ट्रांग हो, तो आपका बिहेवियर उस जगत में होगा कि एवरीवन वुड लव यू। हम क्यों कहते हैं सचिन तेंदुलकर है, भाई वो तो क्रिकेट का बादशाह है, कुछ तो उसने भी किया है बादशाही कमाने के लिए, राइट? बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं, when they become so famous, उनके पीछे की लाइन देखो कि whether how many days did they sleep, कितने घंटे सोते हैं। So one of major factor is giving. थोड़ा सा just I will take 5 minutes more। एक चीज मैं और बताती हूँ। कई लोगों का शौक होता है मुझे मिले। There are few people, आपने सोसाइटी में देखा होगा, उनको लगता है कि मुझे मिले। जब आप इस फीलिंग के साथ जीते हो ना, तो भगवान कहता है ले ले, मैं भी तुझे देता हूं। जब तक आप परमात्मा के आगे ये नहीं मांगोगे कि हे परमात्मा मुझे इतना सक्षम बना दे कि मैं दिन में सोसाइटी के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने लिए कुछ कर सकूं, तभी ही आप एक सक्षम व्यक्ति बन पाएंगे। फिजिकली तो सबको पता है, मेंटली भी आपने स्ट्रांग होना है। 10 पॉइंट में मैं आपको बताती हूँ। पहले सिर्फ मैं लास्ट 10 पॉइंट्स हैं और बड़े शॉर्ट में बताऊंगी। नंबर 1, ओज पॉजिटिविटी। यहाँ सपोज फॉर एग्जाम्पल दिस गर्ल इन ब्लैक इज ब्यूटीफुल, से ओ यू आर ब्यूटीफुल। दिल में ना रखो, जेलसी ना रखो, अपने अंदर से पॉजिटिव निकालोगे ना, तो वो भी नेक्स्ट टाइम आपको पॉजिटिविटी मिलेगी, है कि नहीं? उसकी साड़ी सुंदर लग रही है, उसकी हंसी सुंदर है, निकालोगे तो वापसी मिलेगा ना। नहीं निकालोगे, अंदर ही रखोगे, उठ के एक दिन लेट जाओगे, बस कुछ नहीं होना। फर्स्ट फैक्टर इज पॉजिटिविटी फॉर योर mental health. Second is self-worth. Third is social interaction. अपनी social interaction को बहुत ही अच्छी तरीके से
डेवलप करना, अपने अंदर पीस, काम, उस एनर्जी का जो आपके अंदर परमात्मा ने दी है, आपके अंदर जो जीवन है, उसको बहुत ही एक खूबसूरत रास्ते पे ले जाना सब आपके हाथ में है। हैप्पीनेस, ग्रेटिट्यूड, फाइंड व्हाट यू हैव, डोंट फोकस ऑन व्हाट यू डोंट हैव। सुबह अपने घर में एक पौधा ही पाल लो, उसकी एक पत्ती भी निकलेगी ना, वो भी देखो आपको कितनी खूबसूरत फीलिंग देता है। दैट आई हैव, मैंने इस पेड़ को बोया, इसमें से पत्ती निकली, कल फूल निकला, कल मुरझाया, फिर आपने एफर्ट किया, दोबारा नेक्स्ट सीजन में आपने प्रूनिंग की, फिर आपने फर्टिलाइजर दिया, फिर वो नेक्स्ट टाइम पत्तियां आती हैं, फिर फूल आता है। इसी तरह से हमारा फिजिकल और मेंटल हेल्थ है। आपको वो फर्टिलाइजर्स पोर करने पड़ेंगे, आपको यूरिया, नाइट्रोजन, आपको वर्मी कंपोस्ट सब देना पड़ेगा अपनी लाइफ में। हैप्पीनेस क्रिएट करने के लिए एफर्ट देना पड़ेगा। आपको किसी और के साथ कंपैरिजन नहीं करना। भाई ये तो लड़का है, लड़का है तो क्या हो गया, तुम भी लड़की हो। डोंट से इक्वल इक्वल इक्वल। मुझे कई बार बड़ा दर्द आता है लेडीज पे जब कहते हैं ना कि हमें इक्वल अपॉर्चुनिटीज चाहिए। मैं कहती हूँ वी आर बेटर देन देम। गॉड हैज bestowed, I have written on my Facebook on this woman day, God has bestowed so beautiful feeling motherhood हमारे पास है। हम एक बच्चे का सृजन करते हैं, उसकी पालना करते हैं। वी आर मल्टीफेसेटेड। दुख के टाइम इट इज बीन प्रूवन, जो औरत करके दिखाती है वो आदमी नहीं कर सकता। शी इज इमोशनली स्ट्रॉन्ग टू रियर ऑफ द फैमिली, टू रियर ऑफ द सोसाइटी। मेल मेंबर हैव देयर ऑन पॉजिटिव, दे आर मोर एनर्जेटिक, उनके पास फिजिकल पावर बहुत है। हम उनके बिना, हमारी सोसाइटी ऐसी है, हम कहें कि रात को उनके बिना हम चले जाएं तो हमारी मूर्खता होगी। रात के उठ के 2 बजे हम सड़कों पे नहीं घूम सकते। We both are wheels of a car. If drawn together, it's a beautiful world. If we do the comparison, तो वो भी मर जाएंगे, फिर हम भी मरते रह जाएंगे। वो ये हैं, वो ये हैं। So I say अपनी मेंटल हेल्थ के लिए कुछ करते रहो, कुछ फर्टिलाइजर्स डालते रहो, खुद को खुश रहो, बनाते रहो, आपका जीवन सफल हो। इसी के साथ ही मैं ये आपका आज का इंटरेक्टिव सेशन खत्म करती हूँ। अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो आई वुड लव टू आंसर। एनी क्वेश्चन? अपनी कोई प्रॉब्लम मैडम के सामने रखना चाहता है तो मोस्ट वेलकम, या चाहती है? अगर प्रॉब्लम भी नहीं रखना चाहते हो, कोई प्रश्न पूछना चाहते हो कि मेंटल, आपकी जो मेंटल लेवल है भाई मेरा इस तरह से है और मैं उसको कैसे एनहांस कर सकती हूँ, मैंने बहुत कुछ तो बता दिया है। बाकी अगर फिर भी पूछना चाहते हो यू आर मोस्ट वेलकम, और नहीं भी पूछना चाहते देन इट इज प्लेजरेबल। पूछना चाहता है कोई? सोचो सोचो। तो हाँ आओ बेटा, वो माइक दो उसको बच्चा। कई बार जैसे कि हमारे माइंड में बहुत सारी क्वेरीज होती हैं या कुछ बहुत सारी चीजें होती हैं कि जैसे आपने कोई क्वेश्चन पूछा, हम उसको बताने के लिए हमारे पास डिफरेंट वेज और डिफरेंट आंसर्स हैं और क्या पता वो आपसे भी बेटर हो, बट हम उसको एक्सप्रेस करने के लिए, अपनी बात को किसी के सामने रखने के लिए हम बहुत ज्यादा हेजिटेट हो जाते हैं। हम जो हमारी जो माइंड पावर है, जो हमारी मेंटेलिटी है, वो इतनी अच्छी नहीं हो पाती कि हम उस हेजिटेशन से दूर हटके और हमारी जो बात है, हमारे आंसर उसको एक्सप्रेस करें। तो मैम आप बता सकते हो कि हम उस हेजिटेशन को कैसे हटाएं? बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा है। आप बहुत लोगों के मन में होती है ये नेचुरल है। हाँ। मतलब इसको कोई ऐसा नहीं है कि आपके साथ कोई प्रॉब्लम हो रही है, हाँ। वो क्या बहुत आम बात है।
ये बहुत आम बात है। इसमें ना तो झिझकने की बात है कि भाई मैं ऐसा हूँ। बहुत सारे बच्चे आपकी उम्र के ऐसे होते हैं कि जो अपना प्रश्न नहीं रख पाते, या दूसरों के सामने सपोज आपको कुछ आता है और 10 लोग बैठे हैं, उसमें से 2 लोग जो हैं वो बोल पाते हैं, सपोज आप नहीं बोल पाते, आपको आता है और आपको राइट आता है, ये भी नहीं है कि आपको गलत आता है, आपको राइट आता है। उस चीज के लिए आप प्रैक्टिस करो अकेले में बैठकर बोलने की। सबसे जो बेस्ट है मिरर में रख के, जैसे पहली बार आपने कोई लेक्चर तैयार किया, राइट, उसमें क्या है कि आप शीशे के आगे खड़े होके उस लेक्चर की तैयारी करो। पहली बार में आप कभी ठीक नहीं बोलोगे, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, 5वीं बार आप कभी ना कभी जरूर एक परफेक्ट, मतलब जो आपके हिसाब से परफेक्ट है, आप उसमें फिर धीरे धीरे आप अपनी फैमिली के आगे बोलना शुरू करो। यू कैन टेल दिस प्रॉब्लम टू योर पेरेंट्स, अगर वो समझते हैं, वो नहीं समझते, आपकी सिस्टर होगी, आपका ब्रदर होगा, कोई दोस्त ऐसा होता है, दोस्त को बताओ, वो आपको एनकरेज करे कि आप बोलो। आप धीरे धीरे अपनी प्रॉब्लम, जब प्रॉब्लम उसी को बताना जो विश्वसनीय हो, जो आपका मजाक ना बनाए। आप अपने दोस्त को कह सकते हो मुझसे सुन ले, सिस्टर को सुन ले, सिस्टर को कह सकते हो। सो with these efforts you will be able to have self confidence। अब आप कल जाके आपने 10 सेंटेंस या 5 सेंटेंस लर्न कर लेना, ठीक है, उसको आप शीशे के आगे 5 दिन बोलना, फिर मैम को आके बताना कि whether you did it right or not, ठीक है। थैंक यू। और कोई? बेटा ये आपका अभी जो प्रोग्राम आप बता रहे थे, इसमें मेडिटेशन भी आपको हेल्प करेगी। आप 5 मिनट चुपचाप बैठा करो, अपने आप के साथ टाइम स्पेंड किया करो, उसमें भी आपको हेल्प मिलती है, हमें कॉन्फिडेंस भी आता है और आप फोकस भी होते हो। क्योंकि ये प्रॉब्लम जब आती है जब आप बोल नहीं पाते हो, कि आप जैसे ही बोलने लगते हो कि आप घबरा जाते हो, है ना। तो जितना आप थोड़ा सा मेडिटेशन करोगे तो उससे आप में कॉन्फिडेंस आएगा। तो आप ये भी ट्राई कर सकते हो, ठीक है। और कोई? हाँ बेटा ये हेलो मैम। हेलो बच्चे, सुनाई दे रहा है बेटा? कोई बोलो आप। मैम मुझे वैसे मतलब मेरी लाइफ आगे आ जाओ। मेरी लाइफ में जो गुस्सा बहुत आता है, मतलब हालांकि मैं सोचती हूँ इस बात को मैं इस बार कंट्रोल करूँगी, बट हालांकि होते हैं हमारी लाइफ में कुछ लोग, सोचते हूँ कि कंट्रोल करूँगी बट वो नहीं होता। और हम मतलब उससे जो सही इंसान होता है उसको भी गलत, हमेशा हमारी पूरी इमेज रह जाती है, मतलब उस इंसान को हम वही समझते हैं। मेरी ये प्रॉब्लम है, आप बता सकते हैं? आपको मैं इंडिविजुअल काउंसलिंग, यू नीड इंडिविजुअल काउंसलिंग। आपके बेटा हाँ, आपको चाहिए। वैसे ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, हाँ, जिसको भी आता है, हाँ, रिएक्शन यही होता है जो आप बता रहे हो। हाँ, बट इसके पीछे जरूर कोई ना कोई रीजन होता है कोई रीजन, या बिना कारण आता है। हाँ, वो मैं ऐसे मैं नंबर ले लेना मैम से, नहीं तो मैं अपना नंबर दे सकती हूँ आपको, आप मेरा नंबर ले लो और यू कैन व्हाट्सएप पे आप ऐसे टाइम ले लेना, उस टाइम मेरी अपनी काउंसलिंग नहीं होनी चाहिए। आई विल गिव यू सजेशन विद इन 2-3 months यू विल बी ए काम, ए पीसफुल पर्सनालिटी। आपको फिर गुस्सा नहीं आएगा और आना भी नहीं चाहिए। वंस इन ए वाइल इज फाइन, 10-20 सालों में आ गया बट नॉट नेचुरल है, 10-20 सालों में आ गया, वो नेचुरल है। बट मतलब बात में जैसे पेरेंट्स के साथ या फ्रेंड्स के साथ या किसी दैट इज नॉट। मेरी प्रॉब्लम ये है कि हालांकि मैं सही भी करती हूँ तो मुझे गलत समझते हैं। मेरी प्रॉब्लम है जब मुझे गुस्सा
गुस्सा आता है, मतलब ये मेरी डेली की प्रॉब्लम रहती है, डेली जब बहुत गुस्सा। तभी मैंने आपकी आंखों से मैंने पढ़ लिया है कि ये काउंसलिंग, गुस्सा आपको आता है, प्रॉब्लम आपकी है, दूसरे इंसान की नहीं है। ये तो है, बट जितना सही है ना, मैं उससे भी मतलब गलत भी ये अकेली ऐसे है ना, जो हम सोचते हैं सबसे बड़ी, पता क्या सोचते हैं हम, मैं ठीक हूँ। अगर मैं अपने आप को, एम्पैथी बोलते हैं इसको, अगर मैं अपने आप को दूसरे के जूते में डाल के देखूं तो वो भी कहीं ना कहीं ठीक होता है। मैंने बहुत बार ऐसा फील किया अपने घर में कि मैं ठीक हूँ, लेकिन जब मैं गुस्सा थोड़ा सा शांत करती हूँ और फिर मैं सोचती हूँ नहीं, लाइक माय हस्बैंड, लड़ाई किससे होती है, ज्यादा हस्बैंड से घर में हो जाती है, तो मैं अगर मेरी कम होती है, टचवुड 5-10 सालों में कभी हुई भी है ना, तो मैंने वो देखा, वो भी गलती में थे और मैं भी थी, ताली दोनों हाथों से बजती है। क्वांटिटी डिफरेंस हो सकती है, किसी का 60 किसी का 40, ऐसा नहीं है कि आप 100% ही एक बंदे की गलती थी और आपको गुस्सा आ गया, कहीं ना कहीं आप भी गलती पे होते हो। हमें वही ठीक करना है कि जहां हम गलत हैं हमें वो ठीक करना है, हमें खुद को ठीक करना है। आप डेली अच्छा करोगे ना, आप सपोज एक डॉग को बॉइल्ड एग डालते हो, पक्षियों को आप दाना डालते हो, आप अपने पेरेंट्स के लिए कुछ करते हो, बट विद ऐसे नहीं कि उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के, विद इन योर गुड हार्ट्स। पीपल नीड मोर ऑफ ह्यूमन बीइंग्स विद प्योर सोल्स एंड गुड हार्ट। जब आप वो हो ना, तभी ही आपको गुस्सा, आपको कुछ नहीं आएगा, आपको लगेगा अरे ये संसार इतना खूबसूरत है, मैं तो बेवकूफ हूँ, इससे ही लड़ती रह गई, इससे भी लड़ती रह गई, मेरा तो स्विट्जरलैंड भी निकल गया, मेरी तो सारी दुनिया निकल गई, मैं किया तो क्या किया। तो यू नीड काउंसलिंग में मेरा नंबर आप ले लो, आप मोबाइल ले आओ अपना, या मैम से ले लेना। वेरी गुड। आवाज नहीं भी। नमस्ते मैम। नमस्ते बच्चे। मैम कई बार होता है जैसे हमसे कोई क्वेश्चन पूछता है या कोई बात पूछता है, उस टाइम हमारे माइंड में उसका आंसर नहीं आता और 10 मिनट या 15 मिनट बाद मतलब हमारे दिमाग में वो बात आती है कि हमें ये बोल देना था, तो इसका आंसर ये था और हमें ऐसे बोल देना था। तो इसमें इसका मतलब है at your heart, at your brain, they are not synced with each other. आप सोच कुछ और रहे हो, अगर आप उस टाइम, जैसे मैम ने कहा बिल्कुल ठीक है, उस चीज पे पूरा फोकस कर रहे हो, आपका माइंड आपकी बॉडी के साथ बिल्कुल एक ही लेवल पे चलता होता है। दिमाग इज योर बॉडी, माइंड इज योर माइंड। अगर आप इन दोनों को इकट्ठा चलाओगे ना, तो कभी भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। आप बॉडी को, माइंड को इधर इस डायरेक्शन में, बॉडी को उस डायरेक्शन में, ब्रेन को कहते हो सोच रहा होता है कि मैंने तो आज उससे लड़ना है, और प्रश्न का उत्तर कैसे दोगे? प्रश्न का उत्तर तब दोगे जब इसमें पूरी तरह से शांति हो, आप उस प्रॉब्लम को बिल्कुल 100% समझ रहे हो कि ये प्रॉब्लम है और मेरा इसका सलूशन है। बट ऐसा नहीं है कि ऐसा जिंदगी में नहीं होता कि आपको कई बार आंसर, कईयों का आंसर आपको बाद में भी याद आ सकता है। जरूरी नहीं है कि हमेशा ही फोकस रहते हैं हम, बट अगर 100% नहीं रहते फिर प्रॉब्लम। बट अगर 20% ऐसा है, 80% आप फोकस्ड हो, देन इट इज नॉट ए प्रॉब्लम। परफेक्शन कुछ भी नहीं है कि एवरी टाइम यू हैव टू बी ए परफेक्ट। Every time you have to be happy and in a very peaceful state. ये अनहैप्पी होने का सबसे बड़ा रीजन है कि हम अपने आप को हमेशा परफेक्ट रखना चाहते हैं। कोई भी इंसान हमेशा परफेक्ट नहीं हो सकता, तो हमारे साथ हमें गलतियां भी होंगी, कमियां भी होती हैं, उनको भी हमें एक्सेप्ट करना चाहिए कि मेरे अंदर ये कमी है और मैं हर टाइम परफेक्ट नहीं रह सकती। दूसरा, जब आप अपने आप को प्रेजेंट में रखने की कोशिश करोगे, हम क्या है या तो पास्ट में घूमते रहते हैं या फ्यूचर में, तो अपने मतलब इस तरह से प्रैक्टिस करो कि अपने आप को प्रेजेंट में रख सको, तो आपका फोकस भी इम्प्रूव होगा और आप जवाब भी अच्छे से दे पाओगे। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, हम या तो पीछे की बातों को रिग्रेट करते रहते हैं या आगे के लिए वरीड होते हैं। तो ये प्रेजेंट में रहने के लिए भाई योगा एंड मेडिटेशन आपको हेल्प करेंगे, है ना।
आई वांटेड टू आस्क, जब भी हम कुछ जैसे हमको जैसे विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट और आवर टीचर्स से टेल्स अस टू स्टे काम, तो हम कोशिश करते हैं कि हम काम रहे, हम अंदर से अपने विचार भी कर लेते हैं शुद्ध, कोशिश करके है गीतिका मैम से कि मेडिटेशन कर लो, कर लिया, और विद ऑल ऑफ सडन कोई इवेंट होता है जो हमको ट्रिगर कर देता है। अभी मुझे किसी ने गाली दी या फिर किसी ने मुझे मार दिया चलते हुए, तो मेरा फर्स्ट एक्शन तो यही होगा, मैं उसको गाली दूंगा वापस या उसको मैं मारूंगा। ये नहीं होना चाहिए। इट ट्रिगर्स अस। आगे चलो। We all are humans and this happens। उसको वापस गाली दे रहे हैं या फिर उसको रिफ्लेक्स एक्शन में उसको मार दे रहे हैं, तो विचार तो हमने कहीं ना कहीं शुद्ध कर लिए, भाव शुद्ध नहीं हुए, जो हम एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं वो वहीं की वहीं रह गए। अभी हम विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट हम दूसरों को ऐसे बताते हैं कि अच्छा सोचो, अच्छा करो, गाली मत दो, लेकिन जब हमारे ऊपर जब एप्लीकेबल चीजें आ जाती है ना, तो हम कहीं ना कहीं चूक जाते हैं, हम नहीं कर पाते उस लेवल उस एक्सटेंट पे अपने भाव शुद्ध। तो व्हाट इज द सॉल्यूशन टू दैट? मैं इसमें अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको, इट हैज बीन 62 इयर्स ऑफ जर्नी, तो मैं आपको अपने ही उससे बताती हूँ कि जब भी आप कोई काम करते हो ना, फॉर एग्जांपल आप मेडिटेशन करते हो, फिजिकल एक्टिविटी करते हो, आप चिड़ियों को दाना दे रहे हो, आप कुछ भी कर रहे हो, यू आर डूइंग फॉर योरसेल्फ, इजंट इट? आप अपने लिए ही कर रहे हो ना। उसमें फॉर एग्जांपल आप मेडिटेशन कर रहे हो, आपके घर में कोई आया ऊंचा ऊंचा बोल रहा है, आपका कोई फ्रेंड आया या यहीं आपको कोई गाली दे रहा है, गाली कौन दे रहा है? वो दे रहा है ना, वो आपके भावों को इफेक्ट, यही तो विजय है, यही तो मेंटल हेल्थ है आपकी, कि आपको वो सामने बैठा गाली दे रहा है और आपको कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। जिस दिन आप ये टेक्निक सीख जाओगे ना और अपनी काउंसलिंग करोगे कि जो मैं करता हूँ मुझे अपना करना है, मुझे ये नहीं देखना, अगर ये आपको बहुत ज्यादा तंग कर रहा है तो आप पीछे हट जाते हो, धीरे धीरे स्लो डाउन, वो रिलेशन ही तोड़ देते हो। कॉलेज में फॉर एग्जांपल मैं वर्स्ट से वर्स्ट एग्जांपल लेते हो, आप बड़े अच्छे बच्चे हो, बड़े शरीफ हो, आपको 10 बच्चे ऐसे हैं जिनकी रेपुटेशन अच्छी नहीं है, जो आपको मारना चाहते हैं या आपको डाउन दिखाना चाहते हैं। वर्स्ट से वर्स्ट तो यही सिचुएशन है ना कि भाई जहां पर्सनल आपकी नहीं बनती, फॉर एग्जांपल मेरी और नीलम की नहीं बनती, मुझे लगा कि भाई नहीं यहाँ तो नहीं हो सकती, मैंने बड़ी कोशिश की या उसने कोशिश की तो मैं नहीं कर पाई, हम दूर हट जाते हैं। वो तो हो गया ना एक लेवल पे। अगर 10 लोग ही आपको सड़क पे पीटने आ गए या आपको कॉलेज में पीटने आ गए, आप उस कंडीशन में आप गाली दोगे, मारोगे अपने आप को। फर्स्ट ट्राई टू टेक योरसेल्फ अवे फ्रॉम ये आपकी उस टाइम की प्रेजेंट की स्थिति है जो आपको या तो विजय दिला सकती है या आपको हरा सकती है। आप उस टाइम किस तरह से आप स्ट्रेटेजी, आप ये देखते हो ना इतने बड़े बड़े जो पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स में क्या है, स्ट्रेटेजीज तो है, वो स्ट्रेटेजीज खेल रहे हैं ऐसी कि दूसरी पार्टी को नीचे क्या करना है, यही है ना। आप उस टाइम क्या स्ट्रेटेजी लगाते हो, वेदर यू आर able to take yourself off from that position or not. Example देती हूँ मैं आपको। In life, going away, sitting on a petrol pump, ₹1,00,000 हाथ में है, 4 बंदे आए, बंदूक लेकर आए कि या तो तुम पैसे दे दो या फिर हम तुम्हें मार दोगे, आप उस पोजीशन में क्या करोगे? मैं सिर्फ उससे पूछ रही हूँ, आप क्या करोगे बेटे? दे देंगे पैसे, दे देंगे। पर अगर आप अपने आप को ये कहोगे नहीं जी, बट उसके बाद भी हम कुछ रिएक्शन देंगे कि या तो मैं पुलिस के पास जाऊंगा या फिर किसी और के पास, कोई आजकल चल भी रहा है कि मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, मैं उनको लेके वापस उसको मारने जाऊंगा, दैट वुड बी आवर सेकंड रिएक्शन। मैं एक मुद्दे पे आ रही हूँ, आपने कहा आप उसको मारने जाओगे, ठीक है? आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट माय सेल्फ। नो, यस, मैं छोड़ूंगा नहीं, राइट? उस रिवैलरी में दोनों का ही नुकसान हो जाता है, कोई ना कोई तो मरता ही है बेटे। ऐसा नहीं है कि कोई बचता है। जो रिवैलरी चलती है, जो
फैमिलीज की चलती हैं, हम देखते हैं कि भाई हाँ इतनी बड़ी बड़ी दुश्मनियां चल रहे हो, आप 2 ले गए, वो 4 ले आया, वो 4 ले आया, फिर आप 6 ले गए, क्योंकि आपको तो जीतना है ना। दूसरा कहता है मुझे जीतना है। इस जीतने की गलत चाह में कोई ना कोई तो निकल ही जाता है, क्योंकि मूवी नहीं है लाइफ। मैं फिर कहूंगी रियलिटी है, हम सुपर हीरोज नहीं है, मैं सुपर हीरोइन नहीं हूँ। यहाँ पे जो बैठे हैं ना, लड़कियां बैठे हैं या लड़के बैठे हैं, भाई सॉरी, एक ने छेड़ा, आपने कहा मैं इसके पीछे चले जाओ, लेकिन ये सोच के जाना वापस आओगे कि नहीं आओगे। अगर ये सोच के जाते हो कि मुझे दुनिया में रहना ही नहीं, भाई इसको मारूंगा या वो है, फिर वो आपकी प्रॉब्लम है। ऐसे तो फिर आप कैसे जियोगे? आपको कभी कोई, फॉर एग्जांपल यहीं बैठे हो आप, आपको कोई लड़की आपकी निंदा कर देती है या आपका मजाक बनाती है, आप कहते हो मैं उसका बनाऊंगी, फिर तो ये प्रोसेस ही शुरू हो गया, फिर दूसरा भी बनाएगा, फिर वो 4 लड़कियां ले आएगी, आप भी 4 लड़कियां ले आओ, 4 लड़के ले आओगे, प्रॉब्लम एग्रावेट होती जाएगी। ये चीजें ना प्रैक्टिस से आती हैं। जैसे आज हम सोचने की कोशिश करें कि मैं गुस्सा छोड़ दूंगी या फिर मैं दूसरों को कुछ गलत बोलना बंद कर दूंगा, तो ये चीजें तो एक दिन में नहीं होती। आप 21 दिन किसी चीज की प्रैक्टिस करो, वो आपकी हैबिट बन जाती है। आप अपने अंदर ये सोच रहे हो मुझे 21 दिन रिएक्ट करना ही नहीं है, तो धीरे धीरे आपके अंदर वो ट्यूनिंग आ जाएगी। फिर आप वो जो रॉन्ग रिएक्शंस होते हैं ना, वो आपके खत्म नहीं होंगे, क्योंकि खत्म तो कभी भी नहीं हो सकते, हम ह्यूमन बीइंग है, कम हो जाए। तो ये हमें ही अपने आप को समझाना पड़ेगा धीरे धीरे करके कि ये चीज गलत है। सोसाइटी के में अगर हम ऐसे करेंगे तो हमारे लिए गलत है। सबसे पहले कोई भी जो गलत चीज होती है वो हमारे लिए गलत होती है, दूसरों के लिए बाद में गलत होती है, क्योंकि हमारे हेल्थ के ऊपर उसका कितना बुरा इफेक्ट पड़ता है। ये चीज आप अकेले में बैठ के सोचो कि मुझे किस तरह से रिएक्ट करना है, और कोशिश करो। पहले दिन आप पूरा नहीं कर पाओगे, दूसरे दिन कुछ और बेटर कर पाओगे, तीसरे 21 दिन लगातार आप एक अपना प्रण बनाओ कि 21 दिन तक मैंने रिएक्ट नहीं करना। 22वें दिन आप ऑटोमेटिकली बेटर हो जाओ। तो ये हम खुद ही कर सकते हैं अपनी प्रैक्टिस से, दूसरे लोग नहीं आपकी हेल्प कर सकते। अपनी खुशी का बटन हमारे हाथ में होता है, किसी दूसरे के हाथ में नहीं होता। अगर हम दूसरे के हाथ में बटन लगेंगे तो हम हमेशा दुखी होंगे। और यहाँ मैं एक चीज जो गीतिका मैम ने कहा बिल्कुल ठीक है, मैं एक चीज और आपको बता रही हूँ। सपोज आप